Friends, hope you are all in good health. So, our today's topic of town planning and urban management is managing urbanization. That how we manage urbanization के एक जो पूरा प्रोसीजर urbanization का उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है. It is a complex challenge that involves addressing the rapid growth of cities and their associated issue. ये एक जो है इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है बड़े लेवल पे हो रही होती है. ज़ाहिर है पूरा सिटी उसमें इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट जो है रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे होते हैं, सोर्सेज भी यूज़ हो रहे होते हैं, पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सब कुछ जो है वो चेंज हो रहा होता है रैपिडली. सो इन सबको देखना और फिर उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना क्या है मैनेजिंग अर्बनाइजेशन. सो इसको मैनेज करने के लिए सबसे जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है कि एक प्लानिंग जो है अर्बन प्लानिंग वो बेहतरीन तरीके से की गई हो ताकि जो है वो वक्त ब वक्त हम इसे देख सकें और वो काम आ सकें. सो दिस इज़ इफ़ेक्टिव अर्बन प्लानिंग दैट इज़ क्रूशल फॉर मैनेजिंग अर्बनाइजेशन. दिस इंक्लूड्स जोनिंग रेगुलेशंस, लैंड यूज़ प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से जोनिंग की हुई है, किस तरह से लैंड यूज़ किया हुआ है, उसकी प्लानिंग क्या है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट क्या है. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कि कोई बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे 50 लोग रह सकते हैं तो वक्त पड़ने पे हम उसको जो है वो वहाँ पे 100 लोग भी रह सकें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो. प्लानर्स मस्ट कंसिडर फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड द पोजीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज कि क्या क्या पब्लिक सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है. सेकंड है टैकल करने का तरीका मैनेजिंग अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Urbanization can lead to environmental degradation. Implementing sustainable practice such as green building techniques, renewable energy sources, and efficient waste management system can help mitigate the impacts. Third is transportation. Mode of transportation जो है वो क्या होना चाहिए, हाईली जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए. It's a developing efficient public transportation system which is essential to reduce traffic congestion and pollution. Encouraging the use of public transport, cycling, and walking can lead to more sustainable urban environments. Fourth one is housing. Rapid urban growth often leads to housing shortages and host household property prices. Strategies such as affordable housing initiatives, mixed use developments, and the rationalization of underutilized areas can help address their issues. Fifth one is social equity. It can exacerbate social inequalities. It's important to create inclusive policies that ensure all residents have access to resources and opportunities such as education, health, and employment. So, these are basic needs of any people. Community engagement. It involves local communities in the decision making process is vital. Engaging residents can lead to better outcomes and foster a sense of ownership and responsibility towards their neighborhood. Seventh one is technological integration. Utilizing technology such as smart city initiative can improve urban management. This includes using data analysis for traffic management, energy consumption, and public safety. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज अर्बनाइजेशन कि किस तरह मैनेज किया जाए अर्बनाइजेशन को. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसे जो है वो ध्यान से आपने सुनना है और साथ साथ अपने नोट्स भी जो है बनाया करें, कोशिश किया करें. It is effectively or efficiently involves several strategies and practices aimed to addressing the challenges that come with rapid city growth. ये अभी हमने कुछ पॉइंट्स देख भी लिए हैं और उसमें कुछ हम ऐड भी कर देंगे. फर्स्ट इज comprehensive urban planning. Cities should develop long-term urban plans that consider population growth, land use, and infrastructure needs. Zoning laws can help organize urban spaces for residential, commercial, and industrial use, ensuring that developments are well structured and accessible. Sustainable practices क्या क्या हो सकती हैं? These include promoting green spaces, using eco-friendly building materials, and emerging efficient waste management systems. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ पे साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो है उसको इनकरेज किया जाए सो दैट इट कैन इनकरेज सस्टेनेबल कम्युनिटी. फिर अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स. रैपिड अर्बनाइजेशन often leads to housing shortages and increased prices. Cities can address this problem by implementing policies that promote affordable housing such as
subsidies, tax incentives for developers, and the certain of mixed income neighborhoods. Social equity, ensuring that all residents have access to essential services such as healthcare, education, and employment. These are the opportunities which are crucial, and policy making should focus on inclusive development that benefits all community members, particularly marginalized groups. फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यानी आप कोई भी ऑनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप आसपास के लोगों के साथ जो है वो मशवरा करके, प्लानिंग करके फिर उसे इम्प्लीमेंट कराएं. Technological integration, utilizing technology to create some initiatives, cities improve urban management. These include using data analytics for traffic control, energy management, and public safety, making cities more efficient and responsive to residents' needs. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन पॉलिसी इन मैनेजिंग अर्बनाइजेशन. देयर आर 4 बेसिकली स्टेप्स ऑफ लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन. जो पॉलिसी है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 या फिर लेवल 1 क्या है? बिल्टअप. कि हमारे पास बिल्टअप होना चाहिए, ठीक है. कोई भी चीज़ कब बनती है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, उसकी कोई भी बिल्डिंग होगी, बिल्टअप. फिर लेवल 2 आता है. वो बिल्टअप जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है. एक अर्बन एरिया बन जाता है और एक रूरल एरिया. सबसे पहले वो क्या है? एक जगह है जिसे हम हैमलेट बोलते हैं आम लैंग्वेज में. पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कि हैमलेट क्या होता है. एक हमारे पास बिल्टअप आ गया, स्टेज 1. स्टेज 2 कब आई? जब वो एक चीज़ 2 में डिवाइड हो गई, यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो गए, सेपरेट हो गए. तो यहाँ पे स्टेज 2 जो है वो अराइज हो गई लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन पॉलिसी मैनेजिंग अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जब वो एक चीज़ 2 में डिवाइड हो गई. फिर आता है थर्ड स्टेप या फिर लेवल 3. इसमें क्या है कि हाई डेंसिटी जो है रेजिडेंशियल वो हो जाती है, मीडियम डेंसिटी रेजिडेंशियल एंड लो डेंसिटी रेजिडेंशियल. यानी इसमें जो है वो अब 3 हिस्से बन गए. पहले एक थे बिल्टअप स्टेज 1 पे, सेकंड स्टेज पे क्या 2 हिस्से, अर्बन एरिया और रूरल एरिया. अब तीसरे हिस्से पे क्या आ गई? 3 डेंसिटी के बेस पे, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल, मीडियम रेजिडेंशियल एंड लो डेंसिटी. यानी वो एरिया जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं. फिर दूसरे नंबर पे वो एरिया जहाँ पे थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, दरम्यान में थोड़ी थोड़ी स्पेसिस हैं. और फिर आता है तीसरे नंबर पे लो डेंसिटी, जहाँ पे बिल्कुल जो है वो कहीं कहीं पे इक्का दुक्का लोग आबाद हैं, लेकिन है रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है. फिर इंडस्ट्रीज़ का फ़र्क आता है. यहाँ पे मिक्स्ड बिल्डअप रिक्रिएशनल जो है वो साइट्स बन जाती हैं, पार्क्स वगैरह बन जाते हैं जब लोग ज़ाहिर है ज़्यादा सारे हैं. तो फिर वहाँ पे कोई पब्लिक प्लेस भी है, पब्लिक सेमी पब्लिक प्लेसेस हैं, कम्युनिकेशन मोड्स हैं उनके पास, स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है. और फिर रिक्लेम जो है उनके पास लैंड है, वैकेंट लैंड भी वहाँ पे अवेलेबल है कि कोई बंदा अगर ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो वो वहाँ पे अवेलेबल है. उसके बाद आता है स्टेज 4 यानी लेवल 4. इसमें क्या है? हाई राइज़ जो है वो अपार्टमेंट्स की हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मकान महंगे हो जाते हैं. फिर मीडियम राइज़ अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स हैं. फिर लो राइज़ अपार्टमेंट हैं, ठीक है. और फिर जो है हाउसेज जो है उनका स्टर्म और सिक्वेशन बन जाते हैं. सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इसमें. फिर जो है वो लाइट जो है वो इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, एक्सट्रीमली इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री एंड हेजर्डस. बहुत ज़्यादा फिर ये नुकसान दे देती है. ज़ाहिर है जब अब एक लोग जो है वो रह रहे हैं किसी एरिया में, किसी टाउन में, एक जगह पे, तो वहाँ पे अगर बीच में कोई इंडस्ट्री बना दी जाए तो ज़ाहिर है इससे सबकी फिर क्या होगी? हेल्थ इफ़ेक्ट होगी. पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, बहुत कुछ बन जाता है. सिनेमाज, हॉल, स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों की रिक्रिएशनल की जो चीज़ें होती हैं. एक शहर जब बिल्कुल अपनी तरक्की हो जाता है, उसकी तरक्की हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये सब कुछ जो है वो बन जाता है. फिर मेजर फंक्शन हॉल्स बन जाते हैं जहाँ पे होल डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. एजुकेशनल लेवल बहुत तरह के बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, हर तरह का अपग्रेड एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, जिसमें क्या हो? इनोवेशन हो, एक दूसरे से एडवांस्ड स्कूल बनने की कोशिश करते हैं. हॉस्पिटल, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, रिलीजियस, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, पेट्रोल पम्प्स, फायर स्टेशन, यानी शहर में जो जो भी चीज़ें होती हैं, पुलिस स्टेशंस एंड अदर, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, रेडियो टीवी स्टेशन, ये सब कुछ जो है अवेलेबल है. कब? जब स्टेज 4 आता है. और साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन जाते हैं, लैंडफिल बन जाता है, डंपिंग एरिया बन जाता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बस टर्मिनल्स भी बन जाते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं और बाकी बहुत कुछ भी है. और फिर लास्ट पे क्या है? प्लॉट. और जब लेवल 4 आ जाता है तो वो कहते हैं कि इसके बाद दोबारा से किसी भी एरिया का क्या शुरू हो जाता है? डिस्ट्रक्शन पार्ट शुरू हो जाता है, यानी दोबारा से फिर वो लेवल 1 पे आ जाता है. सो दीज आर द पॉइंट्स और क्लासिफिकेशन पॉलिसी
मैनेजिंग अर्बनाइजेशन कि हम अर्बनाइजेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन, जो पॉलिसी है ये किस तरह अपना रोल प्ले करती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग अर्बनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग हाउ लैंड इज़ यूटिलाइज्ड within a city. Zoning regulation help to prevent conflicts between different land uses, such as placing heavy industries next to residential neighborhoods, which can lead to noise and pollution issues. Then it will also promote sustainable development, like, for instance, designating areas for green spaces and parks. It would also enhance the quality of life while ensuring that commercial and industrial developments are located in areas with adequate infrastructure. Planning infrastructure, such as infrastructure में कौन कौन सी चीज़ें हैं, roads, public transportation and utilities. These are the things which help out in understanding where different types of development will occur, allows for better allocation of resources and ensure that infrastructure can accommodate growth. ज़ाहिर है हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, दिन ब दिन क्यों हम बना रहे हैं, रोड क्यों आप बिल्ड करते हैं, इसलिए ताकि क्या हो, उस एरिया की ग्रोथ हो. Environmental protection to help pressure biodiversity and maintain ecosystem which are vital for urban resilience. Community development also play a very important role in community engagement, like it encouraging mixed use developments that combine residential, commercial and residential spaces. It promotes walkability and reduces the need for long commutes, enhancing overall urban livability, addressing the needs कि हाउसिंग नीड्स क्या है, वहाँ पे लोग क्या क्या चाहते हैं. कोई भी हाउसिंग स्कीम बन गई है, हमने वहाँ पे बेसिक नीड जितनी भी थी, पानी का जाल बिछा दिया, ठीक है, पानी के हमने पाइप बिछा दिए, सुई गैस के बिछा दिए, बिजली के हमने दे दिए, ठीक है, बड़े हमने बेल्ट रोड बना दिए, ग्रीन एरियाज़, पार्क्स, मस्जिद, सब कुछ बना दिया. लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, मीटिंग करनी चाहिए कि वो वहाँ पे और क्या चाहते हैं, ताकि वहाँ पे और एडवांसमेंट आ सके और उस एरिया की और ज़्यादा ग्रोथ आ सके. नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.